بات کریں گے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دے دی ہے۔ سندھ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے تمام افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں طہا ملک سے۔ طہا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سندھ کے تمام افسران کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کی شکایت پر متعلقہ افسران فوری طور پر کارروائی کریں، جبکہ حکومت سندھ عوام کو ہر طرح کے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا تھا شرجیل انعام میمن کا، جبکہ اضافی کرایہ کی وصولی کے خلاف مہم بعد ازاں عید تک جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عید قریب آتے ہی بسوں کے کرایوں میں اضافے کی روایت برقرار ہے۔ شہر کے مختلف بس اڈے ہیں جہاں پر منمانا کرایہ وصول کیا جانے لگا ہے۔ بسوں کے کرائے میں 200 سے 500 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندے طہا ملک سے جو اس وقت صدر بس اڈے پر موجود ہیں۔ طہا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اگر بات کری جائے بسوں میں کرائے کے اضافے کی تو یہ جو ایک روایت ہے یہ اس سال بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل شرجیل انعام میمن کی جانب سے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ کرایہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو کرائے میں اضافہ کرے گا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ اس وقت عمل میں نہیں لائی گئی ہے، جبکہ مسافروں سے اس وقت 200 سے 500 تک جو ہے وہ اضافہ کر کے کرایہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں، شرح کی بات کریں تو 10 سے 20% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے ادھر بسوں کے اندر، بسوں کے کرائے کے اندر۔ اگر ہم مختلف شہروں کی بات کریں تو اگر کراچی سے اسلام آباد جانے والے شہریوں کی بات کریں تو پہلے ان سے کرایہ جو ہے وہ 6000 روپے لیا جاتا تھا، جبکہ اب جو ہے وہ 6500 روپے لیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے لاڑکانہ جانے کا جو کرایہ تھا وہ 1000 روپے وصول کیا جاتا تھا، جبکہ اب جو ہے وہ 1200 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 200 سے 500 تک کا اضافہ جو ہے مختلف شہروں کے لیے کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے، جو مسافر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کرائے میں کم کرنے کی بات کریں، کرایوں میں کمی کی بات کریں اور کرایہ نارمل ڈیز کے حوالے سے بات کریں کہ نارمل ڈیز کے حوالے سے لیے جائے تو ادھر جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بسوں پہ نہ چڑھیں اور بسیں خالی بھی لی جا رہی ہیں، لیکن کرایہ کم نہیں کیا جا رہا۔ جی ٹھیک ہے، طہا ملک تفصیلاً اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ۔ بجلی کے بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی کا کیس KMC کی جانب سے کہ الیکٹرک سے کیے گئے معاہدے کی کاپی سندھ ہائی کورٹ میں جمع۔ CT21 نے KMC اور کہ الیکٹرک کے معاہدے کی کاپی حاصل کر لی۔ مزید بات کریں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی، جس میں KMC کی جانب سے کے الیکٹرک کیے گئے معاہدے کی کاپی جو ہے وہ عدالت میں جمع کر دی گئی ہے۔ معاہدے کے مطابق کے الیکٹرک میونسپل چارجز کی ماہانہ وصولی کا 7.5% حصہ ملے گا۔ KMC کے بجلی کے بلوں کے پیسے بھی میونسپل چارجز کے جمع رقم سے ادا کیے جائیں گے۔ KMC نے کے الیکٹرک کے 1.5 ارب روپے کے واجبات بھی ادا کرنے ہیں۔ میونسپل چارجز کی وصولی رقم میں سے 50% کے الیکٹرک کے واجبات کی مد میں ادا کی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق KMC اور کے الیکٹرک کے درمیان معاہدے کا اطلاق کراچی کے کنٹونمنٹ ایریاز پر نہیں ہوگا، جبکہ کے الیکٹرک بغیر کسی وجہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے 1 ماہ کی پیش کی اطلاع پر۔ معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کے الیکٹرک اور KMC کے درمیان معاہدہ جون 2022 میں یہ طے پایا گیا تھا، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے اعتراضات بھی آج عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے وکیل کے مطابق KMC اور کے الیکٹرک کے درمیان معاہدہ جن افراد کے دستخط پہ ہیں انہیں عہدے نہیں لکھے گئے ہیں۔ KMC کے واجبات کی مد میں 50% رقم جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے وکیل کے مطابق معاہدہ ختم کرنے کا حق صرف کے الیکٹرک کو دیا گیا ہے، جبکہ KMC کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے ممتاز، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سندھ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ثقیل احمد عباسی کی سربراہی میں ہائی پروفائل اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں DG رینجرز، DIG سکھر، لاڑکانہ سمیت اہم افسران کو طلب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، کیا تفصیلات ہیں اجلاس کی؟
देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। कराची समेत लाड़काना, सखर और सूबे के दीगर इलाकों में जो है अमन अमान की मखदूस सूरत हाल और अमन अमान कैसे बहाल किया जाए, इस मुतल्लिक आज एक हाई प्रोफाइल इजलास जो है वो सिंध हाई कोर्ट में मुनक्किद किया जाएगा। और ये इजलास जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद की सरबराही में होगा। इस इजलास में तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग जो है तलब की गई थी। इजलास दोपहर 2 बजे सिंध हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग में होगा। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स भी जो हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ डीआईजी सखर लाड़काना को भी चीफ जस्टिस ने तलब कर रखा है। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में जो है एसएसपी कश्मोर कंदकोट भी होंगे, एसएसपी शिकारपुर और एसएसपी घोटकी को भी जो तलब किया गया है, क्योंकि ये 3 अजला ऐसे हैं वहाँ पर जो है वो क्राइम का रेशो सबसे ज़्यादा है। अगवा बराए तावान के वारदातें भी हो रही हैं। साथ ही साथ आज के इजलास में वकलाओं को भी शामिल करने का कहा गया है, जिसमें सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैं, सदर कराची बार और दीगर बार के जो सदूर हैं वो भी शामिल होंगे। सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग में कराची, सखर और लाड़काना डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल पर जो है आज गौर किया जाएगा। जबकि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी जो है आज मुमकिन तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लिहाजा ये इजलास आज 2 बजे सिंध हाई कोर्ट की इस बिल्डिंग में होगी। जी, सीटीडी टीम का रकम वसूली के लिए चाय के होटल पर गैर कानूनी छापे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। शहरी जासिम अली को कैसे दहशतगर्दों की तरह हिरासत में लिया गया, फुटेज में देखा जा सकता है। फुटेज में सीटीडी एहलकारों की जानिब से नौजवानों को उठाकर गाड़ी में डालते देखा जा सकता है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से ये वाक़या बना हुआ है कि सीटीडी टीम की जानिब से जो है गैर कानूनी छापा मारा गया। तो सीटीडी के काम की जानिब से इस बात से मुकरा जा रहा था कि उन्होंने कोई छापा नहीं मारा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उनको जो है उन एहलकारों को भी जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है शहरी जासिम अली को कैसे दहशतगर्दों की तरह हिरासत में लिए गए, वो तमाम मनाजिर जो है वो सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। सीसीटीवी पे देखा जा सकता है कि सीसीटीवी मोबाइल में चाय के होटल पे तेजी से आकर रुकती है। एसएमजी पकड़े 3 एहलकार पीछे एक साइड से कूदता है, मोबाइल के बाएं दरवाजे से सीसीटीवी अक्सर निकलकर होटल पर जाता है और एहलकारों ने चाय के होटल से एक नौजवान को मोबाइल पे बिठाता है। मुजामत करने वाले एक नौजवान पर 5 अफराद बदतरीन तशद्दुद भी करते हैं, जबकि उसमें ताज़ा लिबास और प्राइवेट अफराद नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जासिम अली समेत 4 नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर वो सीसीटीवी की मोबाइल में भरकर उनको सीटीडी गार्डन हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है और वहाँ पर 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि सीटीडी ड्राइवर टास्क पूरा होने पर जो ये बताया जाता है कि चारों एहलकारों को जो है रफाकत नामी जो अफसर है उसने जो है गैर कानूनी छापा मार कर जो है हिरासत में लिया गया था, जिसमें एएसआई लियाकत जहांजेब और हारिस भी जो है शामिल है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से सीटीडी गार्डन में छापा मारकर चारों अफराद को गिरफ्तार करके जो है उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हेडक्वार्टर जो है मुंतकिल किया गया है। सीटीडी की जानिब से कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी चल रही है और जल्द जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर कायद में मुनाफाखोरों ने फल भी महंगे कर दिए हैं। सरकारी कीमतों को नजरअंदाज करके मनमानी कीमतों पर फलों की फरोख्त जारी है। गोल्डन सेब सरकारी कीमत से 101 रुपये महंगा 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी कीमत से 50 रुपये महंगा 200 रुपये दर्जन दस्तयाब है। चीकू सरकारी कीमत के मुकाबले 32 रुपये महंगा 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है। गोल तरबूज सरकारी कीमत से 56 रुपये महंगा 200 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। किन्नू सरकारी कीमत से 89 रुपये महंगा 250 रुपये दर्जन दस्तयाब है। अमरूद सरकारी कीमत से 50 रुपये महंगा 200 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि खरबूजा सरकारी कीमत से 11 रुपये महंगा 150 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। आपको बताएं कि रमजान मुबारक का तीसरा अशरा भी इख्तिताम के करीब है, लेकिन शहर में गैस मसाइल हल नहीं हो सके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार हैं।
कायदाबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, लांडी और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना गैस प्रेशर में कमी और बंदिश का सामना होता है। सहर इफ्तार में ताख़ीर से गैस फराहम करके कबल अज़ वक्त बंद कर दी जाती है, तो दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है, ताहम रोज़ाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। सुई सदरन गैस का गैस चोरों के गिर्द घेरा तंग। लियाकताबाद की 6 कसीरुल मंजिला इमारत पर छापा, 20 लाख रुपए से जायद की गैस चोरी पकड़ी गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी यहाँ से देखा जाए कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत के बाद सुई सदरन गैस की जो टीम है गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी है। कराची के इलाका लियाकताबाद की 6 कसीरुल मंजिला इमारतों पर छापा मारा गया है, जहाँ 20 लाख रुपए से जायद गैस चोरी पकड़ी गई है। गैर कानूनी कनेक्शन मुकत्ता कर दिए गए हैं। चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, क्लिप्स और दीगर सामान तहवील में ले लिया गया है। और सुई सदरन गैस ने यह भी कहा है कि कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में कार्रवाई की गई, जिसमें नवाबशाह, महराबपुर, नौशेरोफरोज, सक्खर, रोड़ी, खैरपुर, लड़काना, शिकारपुर में छापे मारे गए हैं। गैर कानूनी कनेक्शन को मुनक़ता कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि गैस चोरी रोकने के लिए कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महकमा तालीम सिंध की गफलत के बायस कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। आपको बता रहे हैं, स्कूल में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। स्कूल की इमारत भी नशे के आदी अफराद ने तबाह कर दी। आयमा खान की रिपोर्ट है। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार तब्दील ना की जा सकी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम खस्ता हाल सरकारी स्कूल महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कई बरसों से इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, जबकि इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। स्कूल में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया तवज्जो नहीं देती। मंशियात के आदी अफराद के स्कूल पर डेरे हैं। कुर्बानी के दौरान लोग अपने जानवर भी यहाँ बांध देते हैं। पहले बच्चे पढ़ते थे और जब बंद हो गया स्कूल तो नहीं पढ़े, तो अब ये खंडार बन गया है और यहाँ जानवर बांधते हैं कुर्बानी के। जब वो भी 10-15 दिन के लिए लोग शामियाना बांध के जगह नहीं होती ना बांधने की, तो गली में नहीं तो इधर ला के कुर्बानी के लिए करते हैं। बस ये शामियाना लगा के 10-15 दिन के लिए करते हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि स्कूल की इमारत का मुरम्मती काम जल्द करवाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर के मसाइल पर अगर बात करें तो ईद उल फितर की नमाज के लिए फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में टी ग्राउंड में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान नमाज पढ़ाते हैं। इस वक्त ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद, बताइएगा ईदगाह की सफाई कब की जाएगी? लेकिन इस वक्त टी ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान नमाज पढ़ाते हैं ईद उल फितर की, और दीगर भी जो ईद उल अज़हा हो या दीगर तकरीबात हो, तो यहाँ पर जो नमाज पढ़ाई जाती है वो मुनीबुर रहमान ही पढ़ाते हैं। इस वक्त अक्सा मस्जिद के बिल्कुल अकब में जो ये ग्राउंड वाक़ है, इसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। यहाँ पर जगह जगह मिट्टी के ढेर जमा है और जो दीगर एक गड्ढा बनाया गया था वाटर लाइन को रिपेयर करने के लिए, वो गड्ढा भी अब तक इंतजामिया की जानिब से बंद नहीं किया गया है। मेरे कैमरामैन इस जानिब दिखाएंगे कि वो गड्ढा है जो कि अभी तक बंद नहीं किया गया है, और इसी मकाम पर जो है वो मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो खड़े रहते हैं और नमाज जो है वो अदा करवाते हैं। इस के साथ दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ग्राउंड के उस जानिब जो है धोबी गार्ड बना दिया गया है। यहाँ पर धोबी कपड़े सुखाना अब उन्होंने शुरू कर दिया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से जो सफाई सुथराई का अमल शुरू किया जाना था वो भी अब तक शुरू नहीं किया गया है। जब ईद उल फितर होती है तो ईद उल फितर के 5 दिन कबल ही जो है वो सफाई सुथराई हमें देखने के लिए माजी में मिलती थी, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया, क्योंकि गुलबर्ग टाउन लगता है तो गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया की जिम्मेदारी है ग्राउंड की सफाई सुथराई करवाए, लेकिन अभी तक जो है सफाई सुथराई का हतमी तौर पर जो है वो आगाज हो सका है। सिर्फ एक ट्रैक्टर यहाँ पर लाया गया है जिसके जरिए इस ग्राउंड
की जो है लेवलिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। जबकि मेरे इस जानिब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दाखिली रास्ता है ग्राउंड का, उस ग्राउंड के दाखिली रास्ते पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा है और इसके साथ साथ पानी भी जो है वो सीवरेज का यहाँ पर इस वक्त जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। ईद उल फितर की नमाज मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है 7:15 पर जो है यहाँ पर अदा करवाते हैं और यहाँ पर न सिर्फ इस इलाके के बल्कि फेडरल बी एरिया के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 12, ब्लॉक 14, ब्लॉक 13, वहाँ से भी बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर आके नमाज अदा करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। सेशन अदालत जनूबी ने डकैती के 6 मुकदमात में 2 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 42 साल कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर परवेज सोलंकी ने मुल्जिमान के खिलाफ 5 से ज़ायद गवाहान अदालत में पेश किए। इस पर मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताइए। जी बिल्कुल, देखें, डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान पर अदालत में जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी शाहिद अली मेमन ने डकैती के 6 मुकदमात में मुलविस 2 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 42 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी है। इन दोनों मुल्जिमान को जो है वो 6 मुख्तलिफ मुकदमात में सजा सुनाई गई है, जबकि अदालत ने दोनों मुल्जिमान को गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने पर जो है वो 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 माह जेल में गुजारना होगा। मुल्जिमान में इरफान और कबीर शामिल हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा जो है वो कामयाबी के साथ मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। सरकारी वकील परवेज सोलंकी के मुताबिक जो है मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में जो है वो 5 से ज़ायद गवाहान पेश किए गए हैं। मुल्जिमान जो है वो दुकानों को भी लूटते थे और शहरियों से भी राहजनी की वारदातों में मुलविस है। मुल्जिमान को जो है वो खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिफेंस के जो कब्रिस्तान है डिफेंस एड का, वहां से गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकद जो है वो बरामद किया गया था। मुल्जिमान अदालत ने जो है वो तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए और इस्तगासा के दलाइल के बाद जो है वो मुल्जिमान को सजा सुनाई है। मुल्जिमान के खिलाफ ये जो मुकदमात हैं ये डिफेंस थाने में दर्ज किए गए थे। जी अब आपको बताएं कि 15 साला बच्ची समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने कहा ये JIT's टास्क फोर्स से कुछ भी नहीं होता, ये सब फर्जी लोगों के मुतमईन करने के लिए करते हैं। क्या आज तक कोई शहरी JIT से वापस आया है? जवाब आएगा। केस के हवाले से तफसील जानते हैं नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 15 साला बच्ची समेत दीगर लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर ने 15 साला बच्ची से मुतल्लिक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बच्ची जो है बंगले में काम करती थी। बच्ची घर से 10,000 लेकर निकली थी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची भी घर से अकेले निकली थी। तफ्तीशी अफसर का ये भी मौक़िफ़ है कि उसके बाद बच्ची कहाँ गई कुछ पता नहीं चल सका, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा किया है कि बच्ची को तलाश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत बताया कि बच्ची के पास ना ही मोबाइल फोन है, ना ही उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अदालत ने रिमार्क दिए कि पंजाब में जाकर कार्रवाई की जाए, यहाँ ऑफिस में बैठकर कोई काम नहीं होगा। जबकि 2012 से लापता शहरी की वालदा भी आज अदालत में पेश हुई। उनका कहना है कि उनका बेटा 2012 से लापता है। 12 साल से अदालतों और पुलिस के चक्कर काट सकेंगे। समाअत के दौरान शहरी की वालदा ने भी अदालत के अंदर आहो बका की। तफ्तीशी अफसर से अदालत ने इस्तफसार किया कि शहरी की बाज़ाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 26 JITs हो चुकी हैं। रेंजर्स ने भी जवाब दे दिया है, जो है लापता अफराद किसी के पास नहीं है। लिहाजा अदालत ने ये रिमार्क दिए कि JIT टास्क फोर्स से कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी है, लोगों को मुतमईन करते हैं। क्या आज तक कोई शहरी JIT से वापस आया है? अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि अगर उनका बेटा जिंदा है तो उन्हें बताया जाए ताकि वो तसल्ली कर लें। अदालत ने रिमार्क दिए कि 12 साल में कोई कार्रवाई नहीं की है, आप लोगों को एहसास ही नहीं है, अल्लाह को जवाब देना है। अदालत ने आइंदा समाअत पर 15 साल बच्ची समेत दीगर शहरियों की बाज़ाबी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है और समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज। कराची में डाकुओं की सरेआम लूटमार। राशिद मिन्हास रोड पर डकैतों ने मोटर सवार को रोक लिया। शहरी की जानिब से लूटमार की बनाई गई फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। अपडेट कर रहे हैं कराची में डाकुओं की सरेआम लूटमार। इस सवाल से मजीद बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात का वाक़या है यूबीएल कॉम्प्लेक्स, जो कि राशिद मीनार रोड के करीब वाक़या है। वहाँ पर दिन दिहाड़े रात के अंधेरे में लूट मार का वाक़या पेश आया है। तो वहाँ पर जो मौजूद शहरी थे उन्होंने अपने घरों के छत से मोबाइल से जो है वीडियो बना ली। इस मोबाइल में देखा जा सकता है, मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजिमान दो शहरियों को जो है लूट रहे थे। कि इसी दौरान मुज़ाहमत करने पर एक शहरी को डाकुओं की जानिब से जो है थप्पड़ों की बारिश भी की गई। मुलजिमान असले के जोर पर दोनों शहरियों को लूट कर आसानी फरार हो गए। जो शहरी ने मोबाइल फोन से जो फुटेज बनाई थी वो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात वारदात वाक़या पेश आया था। तहम इसके जो है मुलजिमान के जो चेहरे हैं वो वाज़ेह हैं। तो उन मुलजिमान को इस फुटेज की मदद से जो है गिरफ्तार करने का दावा किया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो जनाब, ईद का चांद कब नजर आएगा? माहिर फल्कियात जावेद इकबाल ने अहम पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि इस साल पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक दिन ईद होगी। आयमा खान की रिपोर्ट देखते हैं। माहिर फल्कियात ने 9 अप्रैल को शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। ईद का चांद सूरज ग्रहण में पैदा होगा, जबकि ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। सिटी 21 से गुफ्तगू में माहिर फल्कियात जावेद इकबाल ने कहा कि नया चांद सूरज और जमीन के दरमियान होगा, जिससे सूरज को ग्रहण लगेगा। चांद जो है ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, तो इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो चांद जब ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है तो उस वक्त जो है सूरज ग्रहण होता है। इन्होंने चांद की पैदाइश के हवाले से मजीद बताया कि सूरज ग्रहण की वजह से सऊदी अरब में 8 अप्रैल को चांद नजर आना नामुमकिन है। फल्कियात की ज़बान में चांद, सूरज और ज़मीन एक कतार में आने को कंजक्शन कहते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स जो कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो है ये 8 तारीख को रात तकरीबन 8:42 पे स्टार्ट होगा। तो चूँकि ये रात के वक्त होगा तो पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आए। तो ये जब रात 8:42 पे इसका आगाज़ होगा, तो ये जो पॉइंट होता है इसको एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में हम कंजंक्शन कहते हैं। 9 अप्रैल को सूरज गरूब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे हो चुकी होगी, जबकि चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो तो बहुत बारीक होता है। ईद के नए चांद का क्रीसेंट 0.5% होगा। कैमरामैन काशिफ के साथ आयमा खान, सिटी 21। तो जनाब, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। आपकी तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं? शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो भी बहाल हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदे फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आशिर अशरे के अंदर हमने देखा कि बाज़ारों और मार्केटों के अंदर ईद की तैयारी के लिए जो शहरियों ने रुख करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद जो है वो ईद के मलबूसात के बाद अब जो है वो मैचिंग की चप्पलें और जूते लेने के लिए जो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरे में अजलान आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी जो है वो ख़रीदार और दुकानदार के दरमियान जो है बार्गेनिंग चल रही है कि इतने में जो है वो मुझे चप्पल दें। हम बात भी कराते हैं आपकी। तो मुझे बताइएगा कि कितने की चप्पल आप बच्चे को दिला रहे हैं और पहले कितने की थी और अब कितनी? पहले बच्चे की चप्पल थी 450 रुपये की, अभी इस वक्त है 800, 850, 750 तक कम है ही नहीं। कोई बात ही नहीं है, मतलब बच्चा निकल जाओ, बस यही रेट है। क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कितने की चप्पल चाहिए? कि भाई थोड़ा कमी पेशी करो भाई। ये क्या हो रहा है? आधे के आधे ऊपर तो नहीं जा रहे, 100 रुपये ऊपर जा रहे, 150 ऊपर जा रहे, बिल्कुल आधे के आधे होता है। बस यही रेट है, बस फिक्स रेट है। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा ये कितनी जो है वो बार्गेनिंग है? ग्राहक का क्या शिकवा है कि कितनी महंगाई हो गई है, हमें क्यों महंगी मिल रही है, या हर दुकानदार ने अपनी महंगी करी हुई है, या आपको भी पीछे से महंगी आई? पीछे से महंगी आई हुई तो हम भी आके महंगी करके बेच रहे हैं ना भाई साहब। हमारे को सस्ती मिलेगी तो हम भी आके सस्ती करके बेचेंगे जी। जान कैसा है आवाम का? मार्केटों में रश आ रहा है और आखिरी अशरा है, तेजी आई है थोड़ी सी? अल्लाह शुक्र तेजी आ गई है। महंगाई जितना भी है फिर भी आवाम शॉपिंग कर रही है, ऐसी बात नहीं है आवाम रुक गई है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी यही कहना है कि महंगाई जितनी भी है आवाम जो है वो भरपूर शॉपिंग कर रही है। आखिरी अशरे के अंदर जो वो ज़्यादा जो है वो लोगों का शॉपिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जबकि दुकानदारों का अपना कहना है कि पीछे से जब माल महंगा है तो हम भी माल महंगा बेचने में मजबूर हैं। जबकि खरीदारों का भी यही शिकवा है कि जो चीज़ पिछले साल हमारे को 800-900 रुपये की मिलती थी वही इस बार 1000-1200 से ज़्यादा की हो गई है, जिसके बाद जो है वो ईद की खुशियाँ तैयारियों में जो है वो कई बार वो महंगी चीज़ भी लेनी पड़ती है। जी, ईद करीब आते ही तारिक रोड पर आवाम का रश बढ़ गया। ख़वातीन की छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। देखते हैं सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट।
چھوٹی عید میں بس کچھ دن ہی باقی، خواتین کی بڑی تعداد مارکیٹوں میں پہنچ گئی۔ کراچی میں عید کی شاپنگ کے حوالے سے طارق روڈ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، جہاں مختلف ڈیزائن کے ملبوسات، جویلری، میک اپ کا سامان اور چپلوں کے اسٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں عید کی تیاریوں میں مصروف خواتین کہتی ہیں کہ عید ہو اور ہماری شاپنگ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں۔ کپڑے لینے آئے ہیں لیکن ہماری تلاش چاند رات تک جاری رہے گی۔ شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی شاپنگ تو اینڈ تک نہیں ختم ہوتی ہے، چاند رات تک۔ تو بس ابھی ہیئر کٹ کروایا ہے، پارلر جانا تھا، وہاں سے ڈالمن جا رہے ہیں ابھی، تو بس شاپنگ کرنے۔ دیکھیں کل بھی کی تھی، تو ابھی تو بس جا رہے ہیں، پھر لیں گے ڈریسز وغیرہ، تو ہو ہی جائے گی کمپلیٹ، چاند رات تک تو ہوپ فلی ہو جائے گی۔ ہم شاپنگ کرنے آئے، ظاہر سی بات ہے شاپنگ کریں گے، اور لیڈیز کی شاپنگ تو آپ کو پتہ ہے چاند رات تک مکمل نہیں ہوتی۔ ابھی ہم لینے نکلے، ابھی دیکھیں کیا لیتے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک طرف، لیکن خواتین کی جانب سے اس بار تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بالکل کوئی 2 سوٹ خریدتے، کوئی 3 سوٹ خریدتے ہیں، جیسے مطلب 1 ہو گیا، 3 ہو گیا، 5 بہت زیادہ چل جاتے ہیں۔ مرد حضرات ہوں یا خواتین، نوجوان ہوں یا بچے، سب ہی عید کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 20۔ جناب، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ کپڑوں کی خریداری کے بعد دوپٹے کو پیکو کروانے کی بھاگ دوڑ شروع۔ پیکو کے نت نئے ڈیزائن دوپٹے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ خواتین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا کام کیا جائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کی تیاریاں اپنے عروج پر، کپڑوں کی خریداری کے بعد اب باری ہے دوپٹہ پیکو کی۔ شہر کے بڑے چھوٹے بازاروں میں پیکو کی دکانوں پر خواتین کا رش۔ پیکو کے نت نئے ڈیزائن خواتین کے دوپٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگے۔ سادہ، لیس اور ٹوسل والے پیکو مارکیٹ میں موجود ہیں۔ دکانداروں نے پیکو کے ڈیزائن کے مطابق ان کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا۔ یہ ہوتی ہیں 150 روپیز کی ہوتی ہیں نا، یہ لیس والی پیکو ہوتی ہیں، باریک سی، سوبر سی، اچھی سی ہوتی ہیں نا، پیاری سی۔ ڈیزائننگ اور بھی ہیں، اور بھی ڈیزائننگ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ کے ڈیزائننگ بھی ہوتے ہیں، لیسز بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری پیکو ہوتی ہیں نا۔ ان میں کلر بھی ہوتے ہیں، ڈیزائننگ بھی ہوتی ہیں، تو 300 روپیز کے ہوتے ہیں یہ، اور بھی پرائز الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بہت سارے ورائٹی ہیں، ماشاءاللہ اچھی چیز ہیں۔ دکانداروں نے طنزیہ انداز میں شکوہ کیا کہ خواتین افطار کرنے بھی نہیں دیتی، بس اپنے کام کی ہی جلدی ہے۔ 11 بجے سے ایک کے بعد ایک کسٹمر آ، کب کھلے گی مارکیٹ، کب ہوگی پیکو، کب کھلے گی مارکیٹ، کب ہوگی کاج اول لگا ہوں گے، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے آ گئے ہیں کسٹمر، کیا کر سکتے ہیں، سیزن چل رہا ہے، ان کا بھی ٹائم ہے، اور ہمارے پاس رش بہت ہے۔ تقریباً رات کو 4:30 سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، 4 بج جاتے ہیں، کبھی 5 بج جاتے ہیں، کل بھی 4:30 بج گئے تھے۔ دوپٹہ پیکو کروانے کی بھاگ دوڑ میں مرد بھی خواتین کے ساتھ مصروف ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین کی عید کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے بزنس مین پریشان۔ ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر ناصر حیات مگو کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے مسائل کو ٹھیک نہیں کریں گے قرضہ لیتے ہی رہیں گے۔ ہمیشہ قرضے لے کر عارضی استحکام پر ہی کام کیا گیا۔ 22% شرح سود اور 50 روپے فی یونٹ بجلی پر دنیا میں کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھا جائے معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے، یا اگر ہم دیکھا جائے سابق صدور جو رہے ہیں فیڈریشن ہاؤس کے، انہوں نے کئی بار تجاویز دی ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے معیشت جو ہے ابھی بھی مشکلات میں، سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ حکومت ایک بار پھر IMF کے پاس جا رہی ہے، مزید کیا سختی ہوگی جانتے ہیں۔ FPCCI کے سابق صدر جو ہیں ناصر حیات مگو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، حکومت ایک بار پھر IMF کے پاس جا رہی ہے $8 ارب لینے، تو اب مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور پیسے مانگتے رہیں گے، میری تو اتنی زندگی گزر گئی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور کوئی چیز امپروو نہیں ہوئی، آخر میں جا کے ٹیمپریری اسٹیبلٹی کے بعد پھر پھنس جاتا ہے معاملہ وہیں کا وہیں۔ اچھا ناصر صاحب، اگر دیکھا جائے ابھی ہم لینے جا رہے ہیں تو اس پہ ایک مزید سختی آ رہی کہ بجلی گیس پہ سبسڈی ختم کی جائے۔ شرح سود آپ نے دیکھا 22% جو کم نہیں ہو رہی، 1 سال ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں 22% شرح سود اور 50 روپے کی بجلی، کون سی دنیا میں انڈسٹری چل سکتی ہے؟ چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں جب تک ریکٹیفائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو انفلیشن ہے وہ کوئی ڈیمانڈ والی انفلیشن نہیں، کاسٹ پش انفلیشن ہے، تو ہمیں تو انٹرسٹ ریٹ کم کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا تو اتنی ڈیمانڈ ہو، مارکیٹ بڑی ہاٹ ہو،
کہ آپ کو خدشہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں تو یہ اور مہنگائی کر لیں گے. وہ تو ہے نہیں معاملہ. بس یہ فارمولے وہی ہیں جو کہیں سے آتے ہیں اور کہیں سے لگ جاتے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ جو اس کا فال بیک آئے گا انٹرسٹ ریٹ کا اور بجلی کی قیمتوں کا, یہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں نظر آئے گا, بڑی شدید طریقے سے نظر آئے گا. لے آف ہو رہی ہیں, کئی ملیں بند ہو چکی ہیں, اور جنرلی جو ہم امپورٹ کا ایک ڈیٹا کا جب ہم اس کو موازنہ کرتے ہیں تو انڈسٹریل را مٹیریل کی جو امپورٹ ہے وہ بھی 20% کم ہو چکی ہے. اس کا مطلب 20% پروڈکشن تو ڈیفینیٹلی کم ہے, اور آگے بھی اس کی حالات تو یہی جا رہے ہیں. جی جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو کنسرنس ہیں پیداواری لاگت بڑھنے پہ, مہنگی بجلی, مہنگی شرح سود کی وجہ سے تو انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو چکی ہیں. امپورٹ کاسٹ کے جو بتایا کہ امپورٹ بھی جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے 20% سے زائد کم ہو چکی ہے. اس کے لیے حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے, بجلی ریٹ کو کم کرنا ہوگا, شرح سود کو کم کرنا ہوگا. کسٹمز ایجنٹ ایسوسی ایشن نے وارفیج چارجز میں ریلیف کی بجائے پورٹ ہینڈلنگ چارجز میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. جنرل سیکرٹری کسٹمز ایجنٹ ایسوسی ایشن محمود الحسن کہتے ہیں کہ چارجز کی مد میں کمی کر کے ایکسپورٹرز کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آیاز رانا سے. جی آیاز, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا شیخ جو کہ میری ٹائم افیئر کے منسٹر ہیں اور وہ FECC آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو وارفیج چارجز ہیں اس کے اندر 50% کی کمی کر دیں گے. اس وقت میں موجود ہوں کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کے, میرے ساتھ جنرل سیکرٹری محمود الحسن موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا کر سکتے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز کو جو پورٹ کی ہینڈلنگ دی ہوئی ہے اس کی قیمتوں میں اگر کمی کر دیں تو ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو جائے. قیصر شیخ صاحب نے بڑی خوشی سے اعلان کیا کہ پورٹ قاسم کو 150 ارب روپے کا منافع ہوا ہے, اور اس خوشی میں وہ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وارفیج کو 50% کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ جناب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ 800-900 روپے ہمیں کم کر کے دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو پرائیویٹ ٹرمینل آپ نے بنایا ہے جس کو ٹھیکے پہ ٹرمینل دے دیے, وہ تقریباً 33,000 سے لے کے 40,000 روپے تک ایک ایکسپورٹ کے 40 فٹ کنٹینر پہ چارجز لیتے ہیں. تو اگر اس میں یہ ہمیں کوئی 50% ریبیٹ دیں یا اس کو کم کریں تو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن ہوگی. دیکھیں دوسری طرف گورنمنٹ نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم متعارف کروا کے ڈیوٹی ٹیکسز 0 کر دیے را مٹیریل پہ. تو اگر ٹرمینل چارجز بھی اس طرح 50% ایکسپورٹ پہ کم ہو جائیں تو میرے خیال میں ہماری ایکسپورٹ اور زیادہ بڑھے گی. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ٹرمینل کے چارجز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے, اس پہ یا گورنمنٹ ریبیٹ دے دے یا ان کو ویسے ہی 50% کم کر لے تو زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے کہ کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے واضح طور پہ یہ مطالبہ ہے اور یہ اس کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا کہ جہاں وارفیج چارجز کے اندر کم کرنے کے بجائے جو پورٹ ہینڈلنگ کے لیے جو نجی کمپنیوں کو دیا گیا ہے اس کے کی مد میں اگر اس میں کمی کر دی جائے تو واضح طور پہ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو ایک ریلیف ملے گا. تو یقیناً یہ فائدہ عوام تک اور ایکسپورٹر تک پہنچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے. جی, ایک ہفتے کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں. 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کے نمایاں اضافے سے پہلی بار 68,000 کی سطح عبور کر گیا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 97 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اشرف خان کی رپورٹ. نئے ریکارڈ بننے لگے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی. 100 انڈیکس پہلی بار 68,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1411 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ہوا. انڈیکس 2.1% اضافے سے تاریخ میں پہلی بار 68,416 کی سطح پر بند ہوا. 47 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 22 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا اور شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 97 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا جو 9,447 ارب سے بڑھ کر 9,544 ارب روپے پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF اسٹاف لیول معاہدے کے بعد سرمایہ کار سرگرم ہیں. آئی تھنک کہ جو نمبرز آ رہے ہیں جس طرح سے انفلیشن کنٹرول ہو رہی ہے اس کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو فارن انویسٹر کا بھی انٹرسٹ آئے گا, لوکل انسٹیٹیوشن کا بھی جو ہے وہ انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے, اور پھر سرٹنلی ریٹیل انویسٹر بھی جو ہے کافی زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جس سے والیوم ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ایکسچینج کے والیوم کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ شو کر رہا ہے کہ ایون آفٹر عید کی چھٹیوں کے بعد بھی یہ ریلی کنٹینیو رہے گی اور یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. اب ہم چاہیں گے کہ جو لوکل ہے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو وہ بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح فروری 2024 میں 23.06% سے کم ہو کر 20.68% ہو گئی اور سرمایہ کار شرح سود میں کمی کی توقع کر رہے ہیں. اشرف خان, سٹی 21. آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ رواں ماہ کراچی کا دورہ کریں گے. چیف جسٹس 22 اپریل سے 26 اپریل تک
कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। आपको यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा रवा माह कराची का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा रवा माह कराची का दौरा करेंगे। अहम दौरा होगा ये। चीफ जस्टिस 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत भी करेंगे। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा रवा माह कराची का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइए। कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अहवान शामिल होंगे, जहां पर अहम केसेस की समाअत करेंगे, जबकि 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा कार हादसे में जख्मी हो गईं। दोनों खिलाड़ी जुमे की शब कराची में मुकीम साथी क्रिकेटर के साथ चाय पीने के बाद होटल से निकली थी। यू टर्न लेते हुए गाड़ी फुटपाथ से जा टकराई। ज़राए का कहना है कि दोनों प्लेयर्स के मकामी अस्पताल में एहतियाती टेस्ट भी हुए हैं और पीसीबी का मेडिकल पैनल उनकी देखभाल कर रहा है। बिस्मा और गुलाम फातिमा की इंजरी बहुत मामूली नौयत की है और ख़तरे की कोई बात नहीं है। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ी कराची में जैरी कैंप का हिस्सा हैं। कराची में इस वक्त मतला मुकम्मल साफ और तेज़ धूप का राज है। कल से सूरज वार करेगा। महकमा मौसमियात ने गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 32 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो दूसरी जानिब शहर का फ़िज़ाई मयार बेहतर है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 26वें और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। हवा में आलूदा ज़रात के मिक़दार 79 पार्टिकुलेट मीटर्स है।